یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق فسوى، والذی قدر فہدی، والذی اخرج المرعى۔ سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق فسوى، والذی قدر فہدی، والذی اخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ارسلان بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے،
آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ارسلان بھائی آپ نے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئے اپنی کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی کالز پلے کریں۔ میں ہانی ہے، میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جب بھی آپ کال کریں تو ایسے مدنی مقصد نہ سنائیں بلکہ کسی طرز میں سنائیں، اچھا لگتا ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔
मेरा नाम उमर है, मैं शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। प्यारे मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगली कॉल। तो मुबीन भाई, आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा है। हम सब घर वाले ये देखते हैं। मुझे आपका प्रोग्राम प्यारे साहबा बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह, आपने सेगमेंट्स की तारीफ की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी अगली कॉल। मेरा नाम सहर यूनस अत्तारिया है। मैं पाकवतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। मैं आपको ये सुनाना चाहूँगी। या अल्लाह, तेरे जिक्र से ही दिन अपना तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का टाइटल सुनाया है। उसका टाइटल का जो ऑडियो है, इसकी साउंड है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, बिल्कुल। किड्स मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, मेरा मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल और हम सबका मदनी चैनल। अगली कॉल। मुबीन भाई, मेरा नाम आयशा ईमान राव है। मैं कहरोड़ पक्का से बोल रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत पसंद है। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमें भी कॉल की। अल्लाह पाक आपको भी मज़ीद बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपनी कॉपियाँ निकाल लें और पेंसिल हाथ में ले लें और साथ हमारे साथ अरबी जुमले याद भी करें और उसे लिखते भी जाएं, ताकि ये आपकी वोकेबलरी में इजाफ़ा भी हो और आपको जल्द अज जल्द अरबी याद हो। जी, नॉर्मली हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आप स्कूल कब जाते हैं, तो इसको अरबी में कहेंगे मता तज़हबु इलल मदरसती। आप स्कूल कब जाते हैं, इसको अरबी में कहते हैं मता तज़हबु इलल मदरसती। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, इसको अरबी में कहेंगे अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, इसको अरबी में कहते हैं अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती। जब हमने अपनी बहन से पूछना हो तो सेम ही सवाल रहेगा, बस तज़हबु की जगह तज़हबीना हो जाएगा। अब हम अपनी बहन से सवाल करेंगे कि आप स्कूल कब जाती हैं, या फ़ीमेल आपस में एक दूसरे से सवाल करें तो वो पूछेंगी मता तज़हबीना इलल मदरसती। ऊपर था तज़हबु और इधर हो जाएगा तज़हबीना। मता तज़हबीना इलल मदरसती। मैं 7:30 बजे स्कूल जाता हूँ, या वो कहें कि मैं 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती व निस्फ़। आप मेरे साथ दोहराते जाएं ताकि आपको भी याद हो और आप हमें कॉल करके सुना सकें। आप स्कूल कब जाते हैं, इसको अरबी में कहते हैं मता तज़हबु इलल मदरसती। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, इसको अरबी में कहते हैं अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती। अब अगर किसी ने, यानी फ़ीमेल ने, किसी ने कहना हो कि मैं 7 बजे स्कूल जाती हूँ, तो इसको अरबी में भी इसी तरह कहेंगे अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती। आप स्कूल कब जाती हैं, जब आप अपनी बहन से सवाल करें या फ़ीमेल आपस में एक दूसरे से सवाल करें तो सवाल करेंगी कि मता तज़हबीना इलल मदरसती। मता तज़हबीना इलल मदरसती। मैं 7:30 बजे स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती व निस्फ़। आप स्कूल कब जाते हैं, मता तज़हबु इलल मदरसती। दोहराते जाएं ताकि आपको भी याद होते जाए। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, इसको अरबी में कहते हैं अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती। आप स्कूल कब जाती हैं, इसको अरबी में कहेंगे मता तज़हबीना इलल मदरसती। मैं 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअतिस साबियाती व निस्फ़। आप इसे लिख भी लें ताकि अभी याद करना अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप बाद में इसे याद कर सकें। आप स्कूल कब जाते हैं, इसको अरबी में कहेंगे मता तज़हबु इलल मदरसती। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, नॉर्मली हमारा यही जवाब होता है।
तो अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअति साबियाती, आप स्कूल कब जाती हैं, इसको अरबी में कहेंगे मता तज़हबीना इलल मदरसती, मैं 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे अज़हबु इलल मदरसती फ़िस्साअति साबियाती व निस्फ़। जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे आज के हमारे कुछ अरबी जुमले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा आए अरबी सेगमेंट, जिस तरह हम पहले से ये सेगमेंट लेते हुए आ रहे हैं और आज भी हमने कुछ जुमले सीखे हैं अरबी के। हसन भाई, अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपनी कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमें कॉल्स में क्या कह रहे हैं। जी, कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम उम्मे हानी है, मैं कराची से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मद्दी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की। मुझे यानी आज जो भी कॉल करते हैं इससे पता चलता है कि जो है आप हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम पसंद कर रहे हैं, देखते हैं डेली। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आप खुद भी देखें, दूसरों को भी दावत आम करें। अगली कॉल। नाम मोहसिन तौहीद है, मैं कराची शहर से बात कर रहा हूँ। प्यारे मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत पसंद है और मैं अपने दोस्तों को भी आपका प्रोग्राम देखने का बोलता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आप अपने दोस्तों को भी दावत देते हैं और मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप देखें, आप खुद भी देखें, आप दूसरों को भी दावत आम करें। माशाल्लाह, आपने दावत आम करी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, अगली कॉल। मेरा नाम अवैस रज़ा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आपको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप खुद भी देखें, उसके दूसरों को भी दावत आम करें। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। मदनी चैनल के नाजरीन, एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्म खून सिर्फ खुश्की पर रहने वाले जानदार, जिनमें इंसान और मैमल शामिल हैं, यानी वो चरिंद और परिंद जो बच्चे देते हैं, इनमें ही मौजूद होता है। और पानी में रहने वाले जानदारों में मौजूद खून ठंडा होता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी यूनिक मछली के बारे में खबर लाए हैं जो समंदर में रहती है, लेकिन इसका खून ठंडा नहीं बल्कि दूसरे जानदारों की तरह गर्म ही होता है। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस यूनिक मछली का नाम ओपा है। ये मछली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के समंदरों में पाई जाती है, जिसमें मौजूद पानी टेम्परेचर के लिहाज से काफ़ी ठंडा होता है। ये मछली इन ठंडे समंदरों में अपने गिल फड़े यानी गिल्स को जोर जोर से हरकत देकर ना सिर्फ अपने खून को गर्म रखती है, बल्कि इस तरीके से इस मछली ने अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है और इस सिस्टम से इसमें गर्म खून सर्कुलेट कर रहा होता है। जी हाँ, जिससे इसका बॉडी टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बच्चों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मछली ओवल शेप की होती है। इसका साइज तकरीबन किसी गाड़ी के टायर के जितना भी हो सकता है और ये समंदर की गहराई में मौजूद होती है। इसके अलावा ये काफ़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस को भी जल्द तय कर सकती है। इसे दुनिया में पहली गर्म खून वाली मछली करार दिया गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से कितनी यूनिक और डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं, जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। चलो, बड़ी एक इंफॉर्मेटिव और एक कह सकते हैं कि अमेजिंग जो है इंफॉर्मेशन आज हमें हासिल हुई है कि एक मछली है जिसका नाम है ओपा और वो गर्म खून वाली जो है मछली है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत है, माशाअल्लाह। मदनी चैनल की नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम जो बहुत ही प्यारा और इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो एनिमेटेड होता है और जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम। नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें
देख के बहुत खुश हुए नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मदनी जाने के नाज़रीन, आपने देखी नज़म टाइम, हमारा सेगमेंट बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। तो आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अनोखी जगह। बच्चों की शान। हमारी इस दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखें तो हैरानी तो होती है, मगर इसके साथ साथ अकल भी समझ नहीं पाती कि ये जगह ऐसी क्यों है और किस तरह है। इन्हीं अमेजिंग चीज़ों में से, जगहों में से आज मैं जिस अमेजिंग जगह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक रॉक, जिसका नाम है अल नस्ला रॉक, जो देखने वालों को हैरान करती है। ये कहाँ है और कैसी है, आइए आपको दिखाते हैं। अल नस्ला नाम की चट्टान दुनिया के बहुत ही अजीबोगरीब चट्टानों में से एक है, जो अरब शरीफ के एक बहुत ही छोटे से टाउन जिसका नाम तैमा है वहाँ मौजूद है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि ये एक ऐसा मजबूत और बड़ा पत्थर है जो दरमियान से इस तरह कटा हुआ है जैसे इसको किसी लेज़र से काटा गया हो। साथ ही दो हिस्सों में ये डिवाइडेड पत्थर अपने वॉल्यूम से कई गुना छोटी बुनियादों पर खड़े हैं। और हैरत की बात यह है कि जब ये पत्थर डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट भी ये जानने में नाकाम रह गए कि ये आखिरकार पत्थर ऐसा क्यों है और कैसा है। अगरचे इस पत्थर के परफेक्टली दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम होने के कई रीजंस बताए गए हैं, मगर यकीन के साथ अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा और ना ही कहा जा सकता है। जदीद तहकीकात के मुताबिक इस बात का पता चला है कि ये पत्थर पुराने ज़माने से मौजूद है। जी मुबीन भाई, ये थी आज की अनोखी। माशाल्लाह, बहुत ही एक अनोखी जगह थी ये आज, और सेगमेंट भी अनोखी जगह का है। और ये इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही एक अमेजिंग अनोखी जगह के बारे में बताया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है और उसका नाम है आए वाक़या सुने। बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़ैफ़ा भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो ज़ैफ़ा भाई, आज आप हमें कौन सा वाक़या सुनाएंगे? आज मैं आपको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह जी। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने यूरोप में तालीम हासिल की थी और टॉप मैथमेटिशियंस में से एक थे। मैथ के एक सवाल में उन्हें मुश्किल पेश आई, बहुत हल करने की कोशिश की मगर सॉल्व ना हो सका। उन्होंने मैथ के सॉल्यूशन के लिए जर्मनी जाने का फैसला किया, जिन पर उनके दोस्त मौलाना सुलेमान बैरी साहब ने मशवरा देते हुए कहा, आप बरेली जाकर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से अपना मसला सॉल्व करवा लीजिए।
ڈاکٹر صاحب نے بڑی حیرت سے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میتھمیٹکس کا مسئلہ کوئی عالم صاحب بھی سالو کر سکتے ہیں جو کبھی کالج بھی نہ گئے ہوں؟ نہ بابا نہ، میں بریلی جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کے دوست نے بہت اصرار کیا، آخر کار وہ اعلیٰ حضرت کے پاس چلے ہی گئے۔ اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کی حضرت میرا مسئلہ بے حد مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا آپ بیان کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا مسئلہ پیش کیا، آپ نے فوراً اس کا حل ارشاد فرمایا۔ جواب سن کر ڈاکٹر صاحب شاکڈ ہو گئے اور بے اختیار بول اٹھے کہ آج تک علم لدنی یعنی بغیر سیکھے اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے پیغام سنتے تو تھے مگر آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں تو جرمنی جانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا مگر میرے دوست نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا لکھا ہوا رسالہ ڈاکٹر صاحب کو دیا، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے میں تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کئی کنٹریز کا سفر کیا، بہت پیسے خرچ کیے، تب کچھ معلومات ہوئی، مگر آپ کے علم کے آگے تو میں صرف ایک اسٹوڈنٹ اور انیکسپیرینسڈ ہوں۔ یہ تو بتائیں اس فن میں آپ کو استاد کون ہے؟ فرمایا کوئی استاد نہیں، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کرم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ بہت ہی ایک پیارا واقعہ اور ماشاءاللہ انہوں نے سنایا، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور مجھے آپ کا انداز بہت اچھا لگا اور ماشاءاللہ آپ کا جو پرفارم کرنے کا انداز تھا بہت ہی اچھا تھا ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نیو سیگمنٹس کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور کڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام بھی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔